Most of us have seen it. You know, this bell also works on electromagnet. Confused? Let us first refresh our memories. We already know when the electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. Also, a current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. The power of this electromagnet can be increased by increasing the number of turns of the coil. It can also be increased by increasing the flow of current through the coil. Let us also not forget, electromagnet can also be turned off by stopping the electric flow of current which made it a magnet. Now that we are clear about the electromagnet, let us now understand how an electromagnet is used in the functioning of an electric bell. Let us see the simplified circuit of an electric bell with the switch in off position. It consists of a coil of wire wound on an iron piece bent to form U shape like a horseshoe magnet. A spring-loaded arm made of an iron strip is kept close to the electromagnet. This arm has a hammer attached to it at one end. Let us call it a clapper. A small gong or bell is also placed near the hammer. See, there is a contact screw near the clapper. Now, let us switch on the circuit and the fun begins. Right now, the clapper is in the contact with the screw, so the circuit is complete and the current flows through the coil. Due to the current flow, the coil becomes an electromagnet. The electromagnet then pulls the clapper towards itself. In this process, the hammer at the end of the clapper strikes the gong of the bell to produce a sound. Let us see what else happened when the electromagnet pulled the clapper and we heard the hammer striking the gong. Look closely. Right now, the clapper is not in contact with the screw. The circuit is broken now. So what will happen next? The current through the coil will stop flowing. Will the coil remain an electromagnet? No, it wouldn't. The coil is no longer an electromagnet. As we know, it's the flow of the current that gives the coil its magnetic power. So, it no longer attracts the clapper. The clapper springs away from the bell back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated again and again very quickly. Thus, the hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. Interesting application of an electromagnet, isn't it? So, in a nutshell, by turning an electromagnet on and off, we made a useful thing, an electric bell. Using this electromagnet, we created the movement of the clapper to ring the bell. With the current flow, the electromagnet attracted the clapper, ringing the bell. But it also broke the circuit and stopped the current flow. Due to this, the electromagnet lost its magnetic power and the clapper went back to its original position, making the contact with the screw again. This made the circuit complete and again the clapper struck the gong. Great, isn't it? So the next time if you get any chance. Hello dear student, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are doing good. Student, today I will going to explain you fourth chapter
current, electricity and magnetism. You know current, electricity, right now? How the electricity pass through the device and how it produce, how it goes work, we will going to see in this chapter. The symbol of electricity represented by the capital I. And magnetism, you know na, any object in a motion, okay, which attraction or which can be repulsion. And how the electricity used in the magnetisms we will going to study in this chapter. Which constitutions are present in this atom? The constitution means the principles and the atom means uncuttable. We have to see what is atoms and how it principles are worked. ओके, एटॉम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और उसके प्रिंसिपल्स ऑन विच बेस, कौन से बेसिस पे प्रिंसिपल्स के काम करते हैं, वी हैव टू सी दैट. ओके, एन एन एटॉम हैज सम नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. हर एक एटॉम्स में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव्स होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं. और जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, और जो भी नेगेटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चार्ज थ्रू इट एटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स. सपोज और ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चार्ज, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई चार्ज नहीं बताता है, that means the atoms contain some of the charged particles. Okay, therefore we can say that plenty of electrical charge is filled in object around us. Whatever the object are around us, in that there have been a electrical charge. Okay, जो भी आसपास हमारे चीज़ें हैं उसके अंदर अगर हमने देख लिया तो उसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस दिखाई दे सकते हैं. What will happen if glass rod is rubbed on the silk cloth? क्या होगा जब हम लोग कोई भी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे? हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा अगर जब कोई चीज़ को ज़्यादा देर से रब करेंगे तो क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट रब हो रहा है उसमें एक करंट पास होने की सिंबल हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकता है. What are static and moving charges? अब इसमें स्टैटिक मतलब जो हिल नहीं सकता, और ऐसे चार्जेस जो मूव हो सकते हैं. मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं. ओके, दिस आर नेगेटिव चार्ज. वो क्या होंगे? दे आर नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. येस, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द पावर दैट इट कैन बी मर्ज और इट कैन बी हैव स्टैटिक. वो एक पार्टिकल से मिल भी सकता है और वो कन्वर्ट भी होता है. ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दे हैव इन अ नेगेटिव फॉर्म. ओके स्टूडेंट, अब वो प्रोटॉन से क्या हो सकते हैं, अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. ठीक है, कैन दिस नेगेटिव चार्ज मेड ऑफ टू फ्लो? क्या ये नेगेटिव चार्ज जो है फ्लो होते हैं? कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लोअर लेवल? देखिए स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू यू. क्या ये नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लो होता है? क्या जो पानी जो हाई लेवल से गिरता है लो लेवल पे उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, मतलब उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. यू कैन लर्न दैट फोर्स विल हैव टू अप्लाई टू पुट एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन. क्या बोला है स्टूडेंट? आपने पिछले फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में पढ़ा है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर जब तक हम उसको फोर्स नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा. राइट? We get current electricity when electron in an electrical conductor are made to flow. हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कब? जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से क्या करता है,
फ्लो होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो ऐसी चीज़ जो जिससे इलेक्ट्रिक क्या होती है, पास होती है, तो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन से। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक current electricity. A large current flow when lighting take place from cloud to ground. है ना स्टूडेंट, आपने देखा है ना कि किस तरीके से बिजली कड़कती है तो वो आसमान से, क्लाउड से जो है वो ग्राउंड पे आती है, तो उसकी फ्लो होती है वो कितनी स्ट्रेट होती है और कितनी जल्दी से वो पास होता है, राइट। While sensation it fell by us due to the microscopic small current flow to the brain. ये हम लोग को एक सेंसेशन फील होता है, सेंसेशन मीन्स फीलिंग, एक हमको महसूस होता है माइक्रोस्कोपी के जो स्मॉल करंट जो है जो आसमान से एकदम जल्दी से जो है कहाँ, ज़मीन पे आता है, तो इसका असर जो है हमारे ब्रेन तक जो है वो आपको एकदम से क्या होता है, समझ में आ जाता है, हमारे ब्रेन पावर से हमको क्या होता है, समझ में आ जाता है। यू आर अवेयर टू करंट फ्लो थ्रू वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट इन द हाउस। आपके घर में तो देखा होगा ना, जो करंट जहाँ से पास होता है तो वो वायर्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, ठीक है, एंड इक्विपमेंट इन द हाउस। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है जिससे हम देख सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कैसी पास होती है, राइट स्टूडेंट। In the electric cells of a radio and in a car battery, a current is produced by flow of both negative and positive charge particles. स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं रेडियो में या फिर कार बैटरी में, ये भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है वो, इलेक्ट्रिक नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से, ठीक है। और इसके बारे में हाउ द सेल कनेक्टेड और हाउ द सेल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज पोटेंशियल? द पोटेंशियल मीन्स हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी, हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी टू डेवलप समथिंग। पोटेंशियल ऐसा होता है कि कुछ चीज़ की जो है कैपेसिटी बताई जाती है, वो प्रोड्यूस होती है कोई चीज़ की, ठीक है। वाटर और लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। स्टूडेंट देखो, जो पानी है वो हाई लेवल टू लोअर लेवल जाता है ना, क्या लोअर लेवल टू हाई लेवल जाता है? कभी नहीं, हमेशा हाई लेवल टू लोअर लेवल आता है। हीट भी जो होती है वो स्टूडेंट हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तक जाती है, ठीक है। सिमिलरली देयर इज टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू द पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। इसी तरीके से स्टूडेंट हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है जो हाई लेवल इलेक्ट्रिक के लेवल से फ्लो होते हुए कहाँ जाता है, लो इलेक्ट्रिकल लेवल तक। This electric level deciding the direction of flow of electric charge is called electrostatic potential. ये इलेक्ट्रिक लेवल ही डिसाइड करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में जो डिफरेंसेस है हम लोग बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी potential differences. Similarly to height of the waterfall, the temperature difference from hot to cold bodies and difference between the potential of 2 points, that is potential difference, is interested to us. अब स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, कैपेसिटी शो करता है कुछ चीज़ बनाने की, चाहे वो आपने देखा है कि हाइट लोअर हायर लेवल टू लोअर लेवल की जो वाटरफॉल्स की हाइट होगी, या टेम्परेचर हमने देखा कि हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडीज़ में आपने देखा है। फिर इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की दो लेवल्स आपको पता चलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके स्टूडेंट, सी यहाँ पर एक ट्राई दिस आपको एक्सपेरिमेंट बोला है, लेट सी के क्या है ये। टेक अ connecting copper wire and connect the circuit as shown in figure 4.1. एक 4.1 देखो आपके पास यहाँ फिगर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला है कि कॉपर वायर कनेक्ट कीजिए सर्किट पे। ए
नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब, जो बल्ब है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है. नाउ कनेक्ट इन द सेम सर्किट 1.5 वोल्ट ड्राई सेल अवेलेबल इन द मार्केट एज शोन इन द फिगर 4.1b. देखिए स्टूडेंट 4.1b में अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक ड्राई सेल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो हमने यहाँ पर लगा दिया ये सर्किट के बीच में, है ना. तो व्हाट हैपन, नाउ इट विल बी रियलाइज फ्रॉम ग्रोइंग टू द बल्ब दैट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक ड्राई सेल लगा दिया तो क्या हो रहा है कि ये ड्राई सेल के वजह से जो फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसके वजह से ये बल्ब जो है वो क्या हो गया, जल गया. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इन द वायर फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू एंड ऑफ द ड्राई सेल. ये जो इलेक्ट्रॉन है, सीधे एरो दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये एरो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन पास कर रही है. ठीक है. ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रही है, कॉपर वायर से अपनी वे पास कर रही है. ठीक है. तो ये जो ड्राई सेल दो एंड पे लगा हुआ है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो लगा हुआ है, इसके थ्रू क्या हो रही है, इसके आसपास से क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. दिस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. देखो कैसा बताया जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कहाँ पास हो रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से. द कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इज शोन इन द फिगर बाय साइन ऑफ द एरो. देखो ये साइन ऑफ द एरो आपको बता रहा है कि किस तरीके से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक पास हो रहा है. ठीक है. वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट लेटर इन दिस चैप्टर. आगे भी हमको इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा बनता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट. In a figure 1.4, there is no current as no potential difference is absent on a cell. है ना स्टूडेंट. देखा ना हमने 4.1 में, जब वहाँ पर कोई ड्राई सेल नहीं था तो वहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं था, तो करंट फ्लो हुआ क्या, नो. द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एज सून एज द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज अप्लाइड. जिस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ कब, जब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंसेस बताई गई, मतलब वहाँ पर ड्राई सेल हमने वहाँ पर इंस्टॉल किया. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द एसआई यूनिट इज वोल्ट वी. वी विल लर्न अबाउट इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड. 9th स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत डीप एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है. ओके स्टूडेंट. नाउ वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. ये हमने देखा है ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज पार्टिकल से ही क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है. The electrical charge flow through wire in 1 second can called a unit current. Yes student. जब 1 सेकेंड में अगर इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है उस वायर के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट करंट बोलेंगे. और एसआई यूनिट का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो किससे होगा, वो कूलम्ब्स पर सेकेंड या एम्पर में होता है. ठीक है. इट इज अ मॉलिक्यूल फॉर्मूला फॉर द करंट. Now we will going to see electrical cells. Electric cells. A source is required to produce a uniform flow of charge in a circuit. ठीक है स्टूडेंट. इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं कि जो जो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा ही जो क्या होता है सर्किट में फ्लो होता है. सर्किट में एक जैसा ही क्या होता है करंट को पास करने के लिए. ठीक है. सच अ जर्नल डिवाइस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सेल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सेल्स बोलते हैं. ओके. वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे. आज के ज़माने में मार्केट में बहुत अलग अलग इलेक्ट्रिक सेल्स अवेलेबल है. दीज आर यूज इन रेंज ऑफ मशीन्स. ये जो है हम लोग को मशीन्स में लगाई जाती है. द रेस्ट वॉचेस टू द सबमरीन. जो हम लोग घड़ी जो पहनते हैं हाथों में, वहाँ भी देखिए कि आपको सेल्स डाला जाता है. ठीक है. टू द बिग ऑफ मशीन, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होते हैं उसमें भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो अंडर वाटर शिप्स होती है, जैसे सबमरीन होती है, उसके अंदर भी जो है ये सेल्स जो है वो यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिक सेल जो है वो यूज़ किया जाता है. ओके.
आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलार सेल, ठीक है ना, आपने सोलार सेल के बारे में भी सुना होगा. द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल्स इज मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स. हर इलेक्ट्रिक सेल का क्या फंक्शन है कि वो एक कांस्टेंट क्या मेंटेन करे, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे, ठीक है. द इलेक्ट्रिक सेल वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक सेल्स कब काम करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेंटेन करने के लिए, जब एक जैसा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर हो. अबाउट विच यू विल लर्न लेटर. लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल्स दे आर करंटली इन यूज़. चलिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक सेल्स है या इलेक्ट्रिकल चार्जर है, आपको न्यू आगे वाले स्टैंडर्ड्स या चैप्टर्स में मालूम पड़ जाएगा. लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं. ड्राई सेल्स, ओके. द ड्राई सेल्स आर यूज इन द रेडियो सेट, wall clock and torches. These are available in 3-4 sizes. The constructions of dry cells are shown in 4.2. हम देखेंगे कि किस तरीके से ड्राई सेल्स बनता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. ड्राई सेल्स जो है आज के ज़माने में आराम से आपको रेडियोज़ में मिल जाएगा. वॉल क्लॉथ होता है उसके अंदर है, घड़ी के अंदर है, टॉर्चेस के अंदर है, और ये 2-3 साइज़ की आराम से मार्केट में आपको आराम से दिख सकता है, ठीक है. और आप लोगों ने देखा भी होगा स्टूडेंट के सेल्स कैसे होते हैं, है ना. ना स्टूडेंट, एक ट्राई दिस करके आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है. लेट्स सी के हाउ ड्राई सेल्स आर देयर. टेक अ लीड ड्राई सेल. एक ड्राई सेल आपको लेने बोला है. ड्राई सेल मालूम है ना, जो भी आप बैटरी यूज़ करते हो आपके घड़ी के अंदर या फिर टीवी के रिमोट के अंदर, वो ड्राई सेल आपको लेने बोला है. रिमूव इट्स आउटर कोटिंग. जो उसका जो, अगर आपने रेड कलर का ड्राई सेल लिया है तो उसका जो रेड कलर का आउटर कोटिंग है ना, वो बोला है उसको आपको निकाल देने. इनसाइड यू विल फाइंड वाइशिंग मेटल लेयर. वाइशिंग में से किसको बोलते हैं स्टूडेंट, कि वाइट पार्टिकल्स, वाइट कलर का जो मेटल आपको एक लेयर में दिखेगा, ठीक है. दिस इज जिंक Zn मेटल लेयर. ये Zn इज एन मॉलिक्यूल फॉर्मूला फॉर द जिंक, ठीक है. उसके अंदर आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट, एक जिंक मेटल की लेयर आपको दिखेगी, ठीक है. दिस इज नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेट. वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होगा. देखो यहाँ पर आपको बताया गया है फिगर में, ओके. नाउ केयरफुली ब्रेक ओपन दिस लेयर. आराम से बोला है कि इसकी जो ब्रेक है, इसके जो सेल के पार्ट्स हैं जो ओपन कीजिए. देयर इज़ अनदर लेयर इनसाइड. आप क्या देखोगे, उसके अंदर एक और लेयर है, एक हिस्सा है. एन इलेक्ट्रोलेट इज फिल्ड बिटवीन दिस 2 लेयर. उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलेट होता है. देखिए आपके यहाँ पर डायग्राम में जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ओके. दिस आर कैरीज इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या कैरीज करते हैं, क्या फ्लो करने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी. दिस इलेक्ट्रोलेट इज वेट प्लम्प ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2 and aluminum chloride NH4Cl. सी स्टूडेंट, ये जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है ZnCl2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला है NH4Cl. सी स्टूडेंट, ये 2 वेट पंप जो है, मतलब ये वेट मतलब गीला सब्सटेंसेस जो है इस इलेक्ट्रोलेट में प्रेजेंट होता है. दिस इज ग्रेफाइट रोड एट द सेंटर. ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है, ग्रेफाइट रोड होता है, ठीक है, जो कार्बन कंडक्ट करता है, ओके. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ये क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्मिनल होता है. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड पेस्ट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 इज फिल्ड आउटसाइड द रोड. रॉड के बाहर क्या लगाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, ठीक है. बिकॉज द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस केमिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस बाय 2 टर्मिनल्स. जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. कौन से 2 केमिकल्स का नाम दिया गया है यहाँ पर, ग्रेफाइट और जिंक लेयर के बीच में, ठीक है. इन 2 के बीच में क्या होगा, अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट. और जिससे जो है, जो भी हम लोग सेल जहाँ जिस सर्किट पे यूज़ करोगे वो सर्किट जो है क्या हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पास हो जाएगा. ड्यू टू द वेट प्लम्प
यूज इन द सेल द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लो, है ना। जो पल्प होता है, वेट पल्प होता है जो इन बैटरी में या सेल में यूज़ करता है, उसकी केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इसीलिए स्टूडेंट इसकी जो प्रोसेस होती है ना, ये केमिकल प्रोसेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। हैंस अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। और हमको बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट पास करने होते हैं तो हम लोग ये स्मॉल सेल्स को यूज़ नहीं करते हैं। कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग द लिक्विड द शेफ सेल्फ ऑफ द ड्राई सेल इज़ लॉन्गर। अगर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सेल से जो ड्राई सेल्स की जो लाइफ शॉर्ट होती है ना वो ज़्यादा होती है, मतलब ड्राई सेल्स ज़्यादा हमको यूटिलाइजेशन में आता है। ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एज दिस कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड कैन बी यूज इन अ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। जो ड्राई सेल होता है वो कन्वीनियंट होता है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करें। हम लोग ग्राउंड से लेके जहाँ हमको जो सरफेस पे आपको यूज़ करना है वहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में तो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में भी ड्राई सेल्स यूज़ होता है। नाउ स्टूडेंट, लीड एसिड सेल देखते हैं हम लोग। लीड एसिड सेल फिगर डिप्लीट द डिज़ाइन ऑफ द लीड एसिड। जो ये 4.3 में जो आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, जो डिज़ाइन दिखाई गई है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है लीड एसिड सेल को, ठीक है। लेट अस एग्जामिन इट प्रिंसिपल। चलो देखते हैं इसकी प्रिंसिपल्स को, हम देखते हैं कि क्या ये बोलता है। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये सेल कब रिचार्ज होता है? जब कंप्लीटली इसकी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकली जो है वो क्या हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लीड एसिड सेल, बेटा अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, आपके घर में इन्वर्टर है, जब सप्लाई कट हो जाती है तो आपको इन्वर्टर यूज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है ना। ये उसी तरीके की बैटरी है, ये बैटरी उसी में ही यूज़ होती है इन्वर्टर में। ओके स्टूडेंट, the lead acid cell contain lead electrode and lead oxide electrode. Both are depleted in a dilute sulfuric acid. देखिए स्टूडेंट, H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसमें ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, लीड है, और लीड जो है Pb, ओके, और इसमें नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। और ये जो PbO2 लीड ऑक्साइड है जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल्स, ये दोनों भी लीड्स सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है, ठीक है। PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला, ये PbO2 क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बताता है, एंड Pb इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। और ये जो ब्लू वाला जो Pb लीड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस दिस टू इज नियरली 2 वोल्ट। 2V मतलब क्या होता है, 2 वोल्ट्स। इन दोनों के, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में 2 वोल्ट्स का क्या बताया गया है, डिफरेंसेस बताया गया है। पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब कि एक जैसे ही कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए इन दो के बीच में 2 वोल्ट का क्या दिया है, डिफरेंसेस बताया गया है। बिकॉज ऑफ द chemical reaction between the substance in the cell, the electric charge is produced in both electrol and electrical current flow through law, that is bulb in circuit. अब देखो स्टूडेंट, जब केमिकल रिएक्शन ये सब्सटेंसेस के बनते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या हो सकता है, आसानी से फ्लो होता है, और जिसकी वजह से जो भी सर्किट में हम इसको लगाएंगे वो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वो ऑन हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट सी दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर हैव कैपेसिटी टू डिलीवर द लार्ज करंट। ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स की कैपेसिटी ये होती है कि वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल को क्या कर सकता है, करंट पास कर सकता है ना। लार्ज करंट पास करने की इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। हैंस लीड एसिड सेल्स आर यूज इन कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड
यूनिडेपेटेड लोअर पावर सप्लाईज यूपीएस, है ना स्टूडेंट। आप लोगों ने देखा होगा ये जो बैटरीज होती है इसमें बहुत सारी कैपेसिटी होती है करंट पास करने के लिए, इसीलिए जो कार है, ट्रक्स है, मोटरसाइकिल्स होते हैं, इसके अंदर ये यूज़ होता है। और आपने यूपीएस देखा है, पता है ना यूपीएस क्या होता है। यस, यूपीएस जो होता है यूनिफॉर्मली करंट पास करने के लिए काम आता है। जब हम लोग सीपीयू और मॉनिटर में इसको यूज़ करते हैं तो यूपीएस बहुत ज़रूरी होता है। ओके, NiCd सेल्स क्या होते हैं, देखो ये NiCd सेल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट, निकल कार्डिनियम है, और NiCd जो है मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, ठीक है। दिस डे अ वैरायटी ऑफ गैजेट आर अवेलेबल विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी द डिफरेंट प्लेसेस। आज के ज़माने में बहुत सारे गैजेट अवेलेबल है और हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेकर जा सकते हैं और आसानी से हमको वो मिल भी सकता है। सच गैजेट यूज इन NiCd सेल, और ये गैजेट जो है वो NiCd सेल्स में ही यूज़ किया जाता है। निकल कार्डिनियम, दिस सेल डिलीवर 1.2 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। देखिए ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स में 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है कांस्टेंट करंट पास होने के लिए, और ये जो सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल होता है, मतलब उसको आप लोग चार्ज फिर से कर सकते हैं। ओके, ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है 4.1 में, ये डायग्राम क्या है स्टूडेंट, ये सेल होल्डर है। आपने देखा होगा ना किस तरीके से सेल आप डालते हैं, राइट ना। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। When a cell holder, an electric bulb and the plug key are connected by connecting wire as shown in 4.4b। देखिए यहाँ पर सेल भी लगाया हुआ है, एक बल्ब भी लगाया हुआ है और प्लग की भी यूज़ किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। देन द बल्ब लाइट अप एंड क्लोजिंग द बल्ब। आपने देखा ना 4.4 में जो सेल होल्डर में किस तरीके से जो है आप लोग एक सेल पॉजिटिव लगाते हैं और दूसरा सेल जो है नेगेटिव से लगाते हैं, राइट ना। वन रिमूवल द सेल द इलेक्ट्रिक करेंट्स। अब देखिए दिस मीन्स द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड बल्ब लाइट अप। जब हम सर्किट लगाते हैं तो क्या होगा, बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन ऑन द रिमूवल ऑफ सेल, जैसे हम सेल निकाल देंगे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट स्टॉप। जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रुक जाएगा, ठीक है। एज इंडिकेटेड बाय द बल्ब विच केसेस टू ग्रो, ठीक है। जो कोशिश करता है उसको लास्ट तक जितने भी इलेक्ट्रिक कॉपर वायर में जितने भी टाइम के लिए वो सेल पास हो रहा है, अगर हमने स्विच बंद कर दिया या हम लोग ने जो सर्किट को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। सेल को निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन उतने देर तक जब तक वो जलता रहेगा बल्ब, जब तक कि उस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। नाउ द सेल इज शोन बाय द सिंबल। देखिए जो सेल्स होते हैं वो कौन से सिंबल दिखा रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर सेल के बाजू में किया गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और ये दो पोटेंशियल डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज इन होम्स सप्लाई। आज देखा होगा ना इलेक्ट्रिक जो सर्किट होते हैं वो आजकल घरों में भी यूज़ होता है। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, बाहर से आती है ना। आपके घर में बाहर आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से बाहर से आपको जो कनेक्शन मिलता है मीटर रूम से, ठीक है स्टूडेंट। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल यू कैन लर्न अबाउट इन द लेटर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। लिथियम आयन सेल आर यूज इन मॉडर्न इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन। देखिए लिथियम आयरन सेल भी यूज़ होता है जो आजकल के ज़माने में यूज़ होता है, एक इक्विपमेंट में, जैसे लैपटॉप में यूज़ होता है, ठीक है, स्मार्टफोन में यूज़ होता है। दिस सेल भी आर रिचार्जेबल, है ना। ये सेल क्या होते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने देखा है ना मोबाइल की बैटरी, राइट ना, या लैपटॉप की बैटरी, ठीक है। मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर इन दिस सेल। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है कंपेयर टू NiCd सेल से। ओके स्टूडेंट, कनेक्टिंग सेल्स देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन मोर वन देन एंड वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सी स्टूडेंट, किस तरीके से एक जो है इलेक्ट्रिक सेल्स जो है दूसरे इलेक्ट्रिक सेल्स या सेल को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया गया है, क्या करने के लिए, एनर्जी
पास करने के लिए, ठीक है। In the transistor radio, 2-3 cells, dry cells are seen to be connected in the series. जो ये ट्रांसमीटर होता है ना स्टूडेंट, उसके अंदर 2-3 ड्राई सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ डूइंग दिस टू मेंटेन द मोर पोटेंशियल डिफरेंस दैन द सिंगल सेल। ये करने का जो मकसद होता है वो ये है कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो सकता है। अगर 2-3 सेल ज़्यादा लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक क्या होती है, वो जल्दी से जल्द ऑपरेट हो जाती है ना। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन हायर करंट। इससे क्या होगा, हायर करंट जो है वो पास होने की कोशिश होती है। इफ़ द सेल्स आर कनेक्टेड, द कनेक्शन ऑफ द सेल्स इज नोन एज बैटरी ऑफ द सेल्स, ठीक है स्टूडेंट। ये जो कनेक्ट हो रहा है सेल एक दूसरे से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी ऑफ द सेल। In the series connection, the positive terminals of one cell is connected to the negative terminal of second cell and positive terminal of second cell is connected to the negative terminal of third cell। देखिए स्टूडेंट किस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में लगाया जाता है जहाँ पर नेगेटिव है, फिर वो नेगेटिव सेल से क्या होता है पॉजिटिव सेल में, फिर पॉजिटिव सेल से नेगेटिव सेल, इस तरीके से एक दूसरे सेल से क्या होता है ये कनेक्टेड होता है, ओके। और स्टूडेंट इन सब की जो सेल्स पोटेंशियल डिफरेंसेस होती है वो 1 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है, 1 वोल्ट की होती है। और टोटल अगर हमने 3 सेल यूज़ किए तो 3 सेल की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, 3 वोल्ट की होगी, ठीक है स्टूडेंट। नाउ यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरी अवेलेबल इन द मार्केट इज द कॉल्ड बैटरी और सेल। जो कार बैटरी होती है वो बैटरी होती है, सेल होती है, वो बैटरी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे सेल्स से उसको क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है, ओके। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है स्टूडेंट हमको, टेक अ इनसाइड ट्रे ऑफ एंड यूज अ मैच बॉक्स फ्रॉम द स्मॉल मैग्नेटिक नीडल्स इनसाइड द ट्रे। एक आपको मैच बॉक्स लेना है जिसके अंदर मैग्नेटिक नीडल डाला गया होगा, ठीक है। नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्टिंग वायर, एक लंबी सी कनेक्टिंग वायर आपको लेनी है उस ट्रे के अंदर, अराउंड ट्रे के अराउंड आपको करनी है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग इट, ठीक है। हम लोग सारे सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं, जैसा वायर है, इलेक्ट्रिक सेल्स है, प्लग है, कीज है, बल्ब है, हमने लगा दी है, ठीक है, जैसा हमको 4.6 में फिगर में दिख रहा है। मार्क द पोजीशन ऑफ नीडल्स, नीडल की पोजीशन आपको बोला है मार्क करने, तो क्या होगा, टेक अ बार मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक नीडल। अगर हमने एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक नीडल के पास लिए गए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा कि कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज प्लग की, जो प्लग की है उसको देखिए और वो नीडल को देखिए, तो क्या होगा, ये जो पोजीशन होता है मैग्नेटिक नीडल का वो चेंज होता है। नाउ ओपन द प्लग की, अगर प्लग की हम ओपन करते हैं तो व्हाट मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, यस। व्हेन विल कंक्लूड फॉर दिस एग्जांपल, देखिए आगे दिया है, यू नो द मैग्नेटिक नीडल्स इज इंडीड अ मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, मैग्नेट होता है। यू मस्ट हैव सीन द मैग्नेटिक नीडल्स चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना, मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन चेंज करती है जब हम मैग्नेट उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है। As you have observed that magnetic needles change its direction when current start flowing in the circuit। क्या बोला है, जिस तरीके से करंट फ्लो होता है सर्किट में, मैग्नेटिक नीडल जो है अपनी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज करती है, ठीक है। दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, वायर से फ्लो होती है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, एक्टिविटी 2 दी गई है, देखिए क्या है, टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग द रेसिस्टेंट कोटिंग एंड वाइंड टाइटली ऑन द आयरन स्क्रू। एक आयरन स्क्रू लेना है और उसके ऊपर ये कॉपर वायर को अच्छे से क्या करना है, आपको बांधना है। कनेक्ट द 2 एंड ऑफ द वायर इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। आपको क्या बोला है, दो सर्किट के 2 एंड को इस स्क्रू पे आपको कनेक्ट करना है। ऑल्सो कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सेल, इसमें इलेक्ट्रिक सेल भी लगाओ और प्लग कीज भी आप उस सर्किट में यूज़ करो।
और कीप 2-4 आयरन पिंस और स्मॉल नेल्स नियर द स्क्रू। स्क्रू के पास आप क्या करो, कोई भी आयरन पार्टिकल्स या फिर कोई भी पिंस आप वहाँ रख दो। नाउ स्टार्ट द करंट। अगर हमने करंट स्टार्ट किया, ठीक है, जब हमने प्लग लगा के उस पर क्या किया, करंट स्टार्ट किया, क्या आप देखोगे कि जो नेल्स है या फिर जो पिन जो हमने रखा हुआ है स्क्रू के पास, वो क्या हो जाएगा, स्क्रू पे क्या हो जाएगा, वो स्टक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, विल द पिन्स एंड नेल कंटिन्यू स्टक व्हेन द प्लग इज ओपन। जब प्लग जब तक बंद नहीं होता है तब तक वो स्टक रहते हैं। जैसे ही प्लग हम निकाल देंगे तो जो मैग्नेटिज्म जो है, जो इफेक्ट है मैग्नेट का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, when the electric current flow in the wire, magnetism is produced in a coil around the screw and because of this screw also attain magnetism। अब आपने देखा है ना, करंट जब वायर में फ्लो होता है तो मैग्नेटिज्म जो है वो कॉइल में क्या हो जाता है, स्क्रू के आसपास चालू होने हो जाता है, और वो जो भी स्क्रू के आसपास जितने भी मैग्नेट नेल्स है वो एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। एज सुन एज करंट इज स्टॉप, जिस तरीके से करंट बंद किया जाएगा, प्लग को निकाला जाएगा, द मैग्नेटिज्म्स वैनिश, मतलब मैग्नेटिज्म का जो पावर होता है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो सिस्टम होता है जो स्क्रू और कॉइल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू हैव बीन वेरियस use of electromagnet in the 6th standard. The electromagnet are also used to produce the magnetic field useful in scientific research। आजकल साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जा रहा है। Now student, we will going to see electric bell. Electric bell. Many of you have must seen the simple electric doorbell. Open such bell which is आउट ऑफ द ऑर्डर। अब देखिए आप क्या बोला गया है कि कोई भी आप लोगों ने देखा होगा ना कि ज़्यादा करके घरों में डोर बेल लगाई जाती है। अब वो डोर बेल को ओपन कीजिए जो यूज़ में नहीं है, मतलब ख़राब है, ऐसा रखा हुआ है। डिप्लीट्स, देखिए यहाँ पर जो फिगर शो हो रहा है वो आपको बता रहा है किस तरीके के डोर बेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं। द बेल्स इज इन विथ इट आउटर कवर रिमूव, वी सी दैट, जो कवर होता है वो बाहर का, उसको निकालिए तो आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही दिखेगा जो अंदर होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बेल। चलिए बेल का देखते हैं क्या काम होता है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो कॉपर वायर जो है वो आयरन पीस का बनाया होता है और जो कॉइल है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, एन आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद द स्टिकर इज फील्ड नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के आसपास जो है क्या लगाया गया है, बोलो, आयरन स्ट्रिप लगाया गया है। ठीक है, सी यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है। द करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज कनेक्ट विद द स्ट्रिप। करंट फ्लो होता है सर्किट में जब स्क्रू जो है वो कनेक्ट होता है किससे, ये आयरन स्ट्रिप से। ठीक है, हैंस कॉइल बिकेम मैग्नेट, और ये कॉइल दिख रहा है ये क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, द करंट फ्लो सर्किट व्हेन स्क्रू कनेक्ट विद द स्ट्रिप एंड हैंस कॉइल बिकेम मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप टूवर्ड्स इट। और वो मैग्नेटिज्म से क्या होता है, जो आयरन स्ट्रिप है वो क्या हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, कोशिश करता है, मैग्नेटिज्म वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर द स्टिकर हीट गॉन एंड साउंड इज क्लियर। इसके लिए वो जो स्टिकर है वो हीट करना स्टार्ट होता है, बजना चालू होता है और एक हमको आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। हाउएवर समटाइम कॉन्टैक्ट स्क्रू लूज एंड कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड द करंट स्टॉप। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्क्रू कनेक्ट होता है वो ठीक से कनेक्ट नहीं होता है, लूज कनेक्शन हो जाता है और करंट पास नहीं होता है, इसीलिए सर्किट जो है वो काम करना नहीं करता। इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉसेज द मैग्नेटिज्म, है ना। अगर करंट ही पास नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म बनेगा क्या, नहीं बनेगा, और वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म खो देता है और आयरन स्ट्रिप फिर से मूव बैक होता है, पीछे आ जाता है, कम इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू। द इलेक्ट्रिक करंट इन द इमीजिएटली रिस्टोर एंड अगेन स्टिकर हीट। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर से रिस्टोर होता है और जल्दी से वो स्टिकर के पास जाता है और फिर वापस से वो आवाज़ क्या होती है, बजना चालू होती है। यह अपने आप रिपीट होता रहता है, बेल बजती है। आप लोगों ने स्कूल्स बहुत पहले ज़माने में भी बहुत जगहों पे ना स्कूल में
चर्च के ऊपर देखो किस तरह घंटी होती है, देखा आप लोगों ने घंटी कैसी होती है, उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग उसको स्टक करेंगे, जब हम उसको हिलाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैंने इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एक छोटी सी वीडियोस आपको शेयर किया है, वो देखिए तो आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट जो है पूरा चैप्टर का आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, होप आई विल व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टुडे, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आज वो आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ एंड स्टार्ट लर्निंग योर सब्जेक्ट्स। अगर स्कूल में आपके क्वेश्चन टीचर्स ने दिए हैं तो आप लर्न करना स्टार्ट करो। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टेक केयर।